कोई और बच्चा जो है वो शेयर कर दो, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। We have started the chemical kinetics yesterday with the introduction to the chemical kinetics, and now move towards the relation between reaction rate and time. So what is the rate of reaction? Rate of reaction क्या है? Decrease in the concentration of reactant or increase in the concentration of product with respect to time is called as the velocity or speed or rate of reaction. Huh? And what is the relation between concentration of reactant and rate of reaction? These are directly proportional. As the concentration of the reactant increases, so rate of reaction increases due to the more number of collision between the reactant molecule. So when you can see the diagram, figure 1 in this page, that is representing the relation between time and speed. ठीक है, रिएक्शन वेलोसिटी और टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम के साथ। तो एज यू सी स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है देन रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी कि होता क्या है, स्टार्टिंग में जो है वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, हाँ, तो रिएक्शन जो है फास्टर रेट से चलता है, क्योंकि क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है तो रिएक्शन रेट फास्टर होता है। एज द टाइम इंक्रीज तो product formation take place and the concentration of reactant decreases. So as the concentration of reactant will decrease, the rate of reaction will decrease with respect to time, and at the end of the reaction the rate of reaction is very low. Okay, you can see in this figure 1 कि on increasing time जो फाइनल स्टेज जो आती है वहां पर क्या होता है कि रिएक्शन का जो है वो वेलोसिटी है दैट बिकम्स सो स्लो दैट इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बिकम जीरो। तो इस कंडीशन को क्या कंसीडर किया था? दिस इज कंसीडर्ड एज द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। सो इफ देयर इज अ रिएक्शन A plus B is equal to C plus DT. Small a, small b, small c, small d. These are representing the molar concentration of the reactant A, B, C, and D. Capital A, B, C, and D respectively. Okay? It means small a moles of capital A reactant reacts with small b moles of capital B reactant. Then there is a product formation of the small c moles of capital C and small d moles of capital D. So this reaction can be rate law के according to the rate law. Rate का representation कैसे करेंगे? आपको क्या बताया था? Rate can be represented, rate of reaction can be represented either in terms of the decrease in the concentration of reactant or in terms of the increase in the concentration of the product. So in terms of A reactant, the rate of reaction can be expressed as R is equal to minus the concentration of the variation in the concentration of reactant A divided by variation in time, that is D concentration of A upon dt into 1 upon A. वो ये मोल्स किसमें आ जाएगा? जो मोल से ये आपके डिनोमिनेटर में into 1 upon A, and it can be represented, ये रेट किसके इक्वल होगा? This is equal to the K into concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. This is the method of the expression of the rate of reaction. तो अगर हम केवल A के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये क्या है? डे के रिस्पेक्ट में रेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? माइनस DCA अपॉन DT 1 अपॉन A, या K इज इक्वल टू रेट। K यहाँ पर क्या है? K इज रेट कांस्टेंट, दिस इज इट विल बी इक्वल टू द product of the concentration of the reactant. Means rate is directly proportional to the product of the concentration of the reactant, and or you can say it is equal to the rate constant. K यहाँ पर क्या है? K is known as the rate constant.
और रेट कांस्टेंट होता है क्या एक्चुअली? व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट वो होता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज द रेट of the reaction when the molar concentration of each reactant is unity. जहां पर जो रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, वन है, उस समय जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रेट कांस्टेंट. इन टर्म्स ऑफ द अदर रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस डी into concentration of B divided by dt into 1 upon small v, or it is equal to K into Ca to the power small n, Ca to the power Cb to the power small b. तो जो पावर में जा रहा है वो क्या है? दैट इज ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और उसके ऊपर मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो, तो यही आपको क्या होता है, इसका जो सम होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज रेज्ड टू द पावर ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. The sum of this is known as the order of reaction. ये अभी डिस्कस करेंगे हम लोग. Minus sign is representing a decrease in the concentration of reactant. Rate can also be expressed in the form of the product concentration. So in the form of concentration of this C, क्या हो जाएगा? Plus dCc upon dt into 1 upon small c is equal to Kc a to the power a plus Cb to the power b. Similarly in terms of t as equation 4. ठीक है, सो ये 1 2 3 4 ये कैसे रिलेटेड है? these all are equal. ठीक है, next is the velocity. Come to the next page. Next is the velocity or rate constant. व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट आपको क्या बताया कि जो कॉन्सेंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर x है, x क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज expressed in terms of the product concentration, dx over dt is equal to K Ca Cb. Further equation a plus b is equal to product. Then K is the rate constant. तो rate constant क्या है? Rate constant is the rate of reaction at which when the molar concentration of each reactant is unity. It is also known as the specific reaction rate. Come to the second page of this PDF. ऊपर आओ बेटा. Yes. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसी को एक्सप्लेन किया. अब देखिए एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन दिया है, दैट इज N2 plus 3H2 is equal to twice NH3. है ना? इसके लिए अगर हम कहें आप रेट निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए? रिएक्टेंट यहाँ पर क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. तो इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद द माइनस साइन. तो माइनस जी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय dt. 1 मोल है तो 1 upon 1 होगा, इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का. इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय dt into 1 upon 3. ठीक है, 3 moles of hydrogen are taken, so it will be 1 upon 3. In terms of product concentration, 2 moles of ammonia are producing, so it will be 1 upon plus 1 upon 2 d NH3 concentration divided by NH3. This is a method to implement the rate law. Now come to the order and molecularity of reaction. जो आज पीडीएफ भेजा है उसको शेयर करो. ठीक है, और जो ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी बता देंगे इसके बाद देन अगेन विल कम टू द फर्स्ट पीडीएफ जो है उसमें काइनेटिक रेट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे. मींस जो आपको फोर्थ पेज होगा उससे स्टार्ट करिएगा. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, किसी भी रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी विदाउट नोइंग ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इट इज वेरी डिफिकल्ट. सपोज रिएक्शन कोई लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा था पहले वाला रिएक्शन जो a plus b is equal to c, a plus b is equal to product, या जो जिसमें अभी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें दिया था, है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जहां पर दिया था a स्मॉल a plus स्मॉल b कैपिटल B is equal to स्मॉल c कैपिटल C plus
स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है, किसी भी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर गिवन, ए स्मॉल a b c d आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द गिवन इन द इक्वेशन. So basically the chemical reactions are classified in terms of their order. Order of reaction, what is order of reaction? Order of reaction is actually the number of atoms or molecule where the concentration changes during a chemical reaction. ठीक है, or you can say the order of reaction is given by the number of concentration terms of atoms or molecules which determine the rate law. जो आपका रेट इक्वेशन है ना, उस रेट इक्वेशन में जो जहां पर रेट लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड दी, that is the actually way of presentation, that is the that is actually the numerical value, है ना. numerical value order of reaction का क्या है कि जो concentration term में जो power raise करते हैं, that is the numerical value, sum of the power raised to the concentration terms in the rate equation is known as the numerical value of order of reaction. but actually order of reaction क्या है कि number of reactant molecule whose concentration actually change during the course of a reaction, जो कि rate law को affect कर रहे हैं. This is called the order of reaction. So order of reaction is a practical concept. It is a practical quantity. Just by watching an equation, you cannot tell the order of reaction. And molecularity of reaction क्या है? The number of atoms or molecules which collide together at one and same time for the reaction to occur. यानी कि कितने नंबर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब पार्टिसिपेट करें, सिर्फ पार्टिसिपेट करें, यानी कि मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. जस्ट बाय वाचिंग एनी रिएक्शन रिटन ऑन द पेपर यू कैन टेल द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे वाटर और ईस्टर का रिएक्शन कराए, मिथाइल एसीटेट CH3COO CH3, ठीक है, रिएक्शन वाटर के साथ, इट विल फॉर्म CH3COH एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल. ठीक है, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन विल बी 2, one molecule of water and one of the methyl acetate. But order of reaction is actually 1, क्योंकि केवल कॉन्सेंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में कोई अंतर नहीं आता है, चेंज किसकी होती है, मिथाइल एसीटेट की. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता करने के लिए यू विल हैव टू सेट अप अ रिएक्शन, मतलब उस रिएक्शन का आपको एक सेटअप जो है वो लैब में लगाना पड़ेगा. Then just by getting the values of the time and the concentration of reactant and the product, you can find out the order of reaction. There are several methods to calculate the order of any reaction. तो किसी रिएक्शन को देख के कि ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जस्ट बाय वाचिंग अ रिटन इक्वेशन ऑन द पेपर यू कैन नॉट टेल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो तो आपको जब तक आपके पास टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज नहीं होंगी तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हो. जबकि मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. किसी भी रिएक्शन को देख के उसका जो है वो मॉलिकुलरिटी बताए. मॉलिकुलरिटी का मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्री. जैसे N2+3H2 अमोनिया फॉर्मेशन में क्या लिया, N2+3H2. तो वह आपको दिख रहा है कि स्टोइकियोमेट्री क्या है कि एक हाइड्रोजन मतलब एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ 3 जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. तो दिस इज द स्टोइकियोमेट्री. तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन विल बी 4. लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आपको पता लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आप ये नहीं कह सकते कि 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो 4. जो जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी वही उसको ही केवल इंक्लूड किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. समझ में आई इतनी बात.
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है इट कैन बी होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू। किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, जहां पर जो आपका रेट इक्वेशन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। when the rate of reaction is independent of the concentration of reaction, the reaction is said to be zero order reaction. ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जबकि मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन विल बी ऑलवेज अ होल नंबर। तो मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है नहीं, मॉलिकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मैम, और मॉलिकुलरिटी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में हो तो? नहीं, फ्रैक्शन में होएगा ही, कोई ना कोई रेशियो ही होगा, तो आप फ्रैक्शन में नहीं ले पाओगे। अगर फ्रैक्शन में होगा भी तो आपको लेना होल नंबर में पड़ेगा। समझिए, जहां पर भी हाफ लिखा होता है उसको होल नंबर में वन, दूसरी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करते हो, अगर हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा होता है तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दूसरे वाले को डबल कर देते हैं, इसको वन कर देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो हाफ नहीं हुई। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या हो गया, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे हाफ करते हो, कर सकते हो मॉलिक्यूल को हाफ? नो मैम, नो मैम। है ना भाई, ये तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे N2+CH2 में क्या लिखा रहा है कि अमोनिया जब बनेगा तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। यही तो मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ ना। तो हाफ मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा बताओ, अमोनिया का 1.5 मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा? इज इट पॉसिबल? नो मैम। नहीं नहीं भाई, हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, 1.5 मॉलिक्यूल कहाँ से रिएक्ट करेगा, मॉलिक्यूल थोड़ी ना ब्रेक हो जाएगा। तो मॉलिकुलरिटी क्या, अब आपको समझ में आ गया मॉलिकुलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो है वो, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्डर ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो वही जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगी, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो ये जनरली मोल्स में कि कितने इतने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इनके जो है वो कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट कर रही है। सो रिएक्शंस कैन बी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर रिएक्शन। तो हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर एक्चुअली वेरी रेयर, है ना। अब जैसे क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि केवल वन reactant concentration term will affect the rate of reaction or will decide the rate of reaction. तो द फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, k c to the power a, not c to the power a, k into concentration of c, पावर 1 ऑटोमेटिकली इज पावर 1। सेकेंड ऑर्डर के लिए या तो दो मॉलिक्यूल ले लिए जाए सी ए के, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होगी, तो क्या हो गया सी ए स्क्वायर, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो k इंटू सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। थर्ड ऑर्डर के लिए तीन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तीनों मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्यूब, या दो मॉलिक्यूल ए के लिए एक मॉलिक्यूल बी का लिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ए स्क्वायर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और इसका रिवर्स। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू of order of reaction is the sum of the powers to which the concentration terms of the reactants are raised in order to express the rate of reaction. So this power ka sum n1 plus n2 plus n3, this sum is known as the order of reaction. So what is the difference between molecularity and order of reaction? Molecularity is the next page पे आओ बेटा, it is equal to the number of molecules of reactants which take part in a single step chemical reaction. केवल एक स्टेप में जो है कितने मॉलिक्यूल जो रिएक्शन की पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन।
जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितने जो है वो रिएक्टेंट जो मोल कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन। इसका जो है वो एक स्टेप दो स्टेप से मतलब नहीं, एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही है रिएक्शन में, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Molecularity is a theoretical concept and it depends on the rate determining step in the reaction mechanism. ठीक है, slowest step जो होगा क्या होगा, rate determining step. तो order of reaction is experimentally determined quantity and it is obtained from the rate of the overall reaction. Molecularity is always a whole number. Order of reaction can be a whole number, zero or fractional value. Molecularity of reaction obtained from a single balanced chemical equation. जबकि order of reaction cannot be obtained from a balanced chemical equation. Molecularity does not reveal basic facts about the reaction mechanism, but order of reaction reveals the basic facts about the reaction mechanism. मतलब कि कितने एक्चुअली कौन सा मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अफेक्ट कर रही है. And I told you that the reaction of higher rates are very rare. Most of the chemical reactions are of the first and second order. ठीक है, हायर ऑर्डर के लिए क्या, देखिए रिएक्शन जो है वो दैट रिएक्शन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट एंड दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस बाय द कोलिजन, है ना. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोलाइड 3 और 4 पार्टिकल्स टुगेदर. और इस कोलिजन में जो आपको कोलिजन थ्योरी आपको बताएंगे, तो कोलाइड करने के बाद भी वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जिनके कोलिजन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट को क्रॉस कर जाए. अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेन नहीं करते तो वो कोलिजन लैप्स हो जाता है और मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते. तो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव कोलिजन. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द इफेक्टिव कोलिजन by the collision of 3 or 4 or more molecules at a time together. Effective collision नहीं होगा भाई, दो चीजें आपस में टकराती, then it is called the effective collision. तब collision एनर्जी ज्यादा होती है. जब 3-4 एक साथ टकराएंगे तो क्या होता है, एनर्जी कम हो जाएगी. तो इसीलिए when two molecules react, when two molecules collide, then there is possibility of the effective collision. So that the higher order reactions are very rare. उनमें collision तो होता है, लेकिन जो होता है वो एनर्जी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता. So I think it is clear to everyone the first order, second order means order and molecularity of reaction. Now come to the kinetic equations of the different orders. Yes. सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज डिटरमिन्ड बाय वन कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल. वन कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल हमने क्या लिया यहाँ पर, ए. ए इज द रिएक्टेंट दैट इज कन्वर्टिंग टू द प्रोडक्ट. एट टाइम t is equal to 0, the concentration of A is small a and the product concentration is 0. After time t, the product concentration becomes small x, so the remaining concentration of reactant is A minus x. So rate of reaction can be expressed minus dA upon dt is equal to k into concentration of A. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को आप के सी ए भी लिख सकते हो, या कॉन्सेंट्रेशन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, बाय रिटन इन दिस ब्रैकेट. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इट इज ए माइनस एक्स. सो दिस रेट इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस डी ए माइनस एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी. क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ए की यहाँ पर ए माइनस एक्स थी, उस समय ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, dx. तो या तो हम इसको ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन. तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी इक्वल टू dx ओवर dt.
तो माइनस जी ए माइनस एक्स ओवर डी टी लिखे या डी एक्स ओवर डी टी। तो हम यहाँ पर जितने भी रेट इक्वेशन में जो डराइव करेंगे वो हम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट लेंगे, ठीक है। सो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के into A minus X, A minus X the concentration of the reactant at time t, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका dx over dt is equal to k A minus x। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को, एंड विद द लिमिट्स x is equal to 0 and t is equal to 0। तो इसलिए a माइनस एक्स को इधर ले गए, dt को किधर ले गए, राइट हैंड साइड पे, x और x एक साइड पे कर दिया तो क्या हो गया, dx over a minus x is equal to k into dt। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन पे क्या हो जाएगा, माइनस ln a minus x to the power n zero limit is equal to kt, और l minus ln a minus x plus ln a is equal to kt, or it can be written as k is equal to 1 upon t ln a over a minus x। जब इसका log base 10 लेंगे then it will be equal to 2.303 upon t log a over a minus x। This is the integral rate equation for the first order reaction। What is the rate constant? Rate constant क्या है? Rate constant for the first order reaction is 2.303 upon t log a over a minus x। What is the unit of k? K की यूनिट यहाँ पर क्या होगी, a की यूनिट कॉन्सेंट्रेशन और a माइनस x की कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या हो गया, कैंसिल। ये क्या हुआ, टाइम इनवर्स, एंड दिस टाइम कैन बी सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स। सो द यूनिट फॉर द unit of the rate constant for the first order reaction is the time inverse। So in any question, if the unit is given that is time inverse for the rate constant, then you can easily tell the reaction follows the first order kinetics। Now see the graph। देखिए इस इक्वेशन को किसको, k is equal to 2.303 upon t log a over a minus s, so convert this equation into the y is equal to mx plus c, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log a minus x ऊपर किया, k कहां पर आ गया, नीचे आ गया 2.303 upon k। तो क्या हो गया, log a over a minus log a minus x is equal to 2.303 upon k log a plus log a, ठीक है। तो x पे हमारा क्या है, x एक्सिस पर t। अब ये t को हम क्या है, t को देखिए किसके किसके बीच में प्लॉट करना है, t और log a माइनस एक्स। तो हम इस जो ये हमारा रेट इक्वेशन है इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि y एक्सिस पे हमारा log a माइनस एक्स वैल्यू है, तो y एक्सिस पे log a माइनस एक्स ले गए तो क्या हो गया, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू t k अपॉन 2.303, माइनस में वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि आप log a माइनस log a प्लस इसको log a माइनस log a माइनस log a माइनस एक्स करेंगे। ये जब इसको इस टर्म में देखिए ये क्या है, log a अपॉन a माइनस एक्स को, जब इसको log a अपॉन a माइनस एक्स को log a माइनस b मीन्स log a माइनस log b के फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log ब्रैकेट में a माइनस, ठीक है। t मैम वॉइस लैग हो रही है। log और log a माइनस मैम वॉइस लैग कर रही है। और इसके बीच log a माइनस
बेटा बाहर आ रहे हैं। अभी क्लियर है? हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आ रहे हैं ना वो ठीक से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So when a graph is plotted between log a minus x and t, it will be a straight line with a slope. Slope जो log a है, that will give you the value of the intercept, and slope is given by the minus k upon 2.303. ठीक है, माइनस के अपॉन, इसको रिवर्स कर देंगे, माइनस के अपॉन 2.303. So when in a first order reaction, when a graph is plotted between the log of a minus x, a minus x यहाँ पर क्या है? The remaining concentration of reactant after time t. तो t के साथ जब log a minus x graph is plotted, then the slope is given by the minus k upon 2.303, and intercept is given by the log a. So by this you can find out the rate constant. So this graph is showing the first order reaction. Now come to the half-life period. What is half-life period? The time at which the concentration of reactant becomes half, or the time which indicate the completion of half of the reaction is known as the half-life period. यानी कि जहां पर x की वैल्यू क्या हो जाए? a/2, जहां पर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन by 2. That time is called as the half-life, and this half-life period is represented by t half. So you can find out the value of half-life period for this first order reaction. This t half is equal to क्या हो जाएगा? 0.693 upon k. कैसे आया? k is equal to 2.303 upon t half log a over a minus x. x की जगह क्या पुट कर दिया? a minus 2. तो ये क्या होगा? 2.303 upon t half log 2. a और a क्या हो गया? कैंसिल हो गया. कितना हो जाएगा? log 2. तो t half is equal to 0.693 upon k. Thus, for a first order reaction, the time taken to reduce the concentration to 1/2 of its original value is called half-life. And half-life for the first order reaction is independent of the initial concentration of the reactant. First order reaction के लिए जो half-life period है, that is independent of the initial concentration of the reactant. ठीक है. Now come to the second order reaction. देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज डिटरमिन्ड बाय द वेरिएशन ऑफ टू कंसंट्रेशन टर्म्स. सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है बेसिकली टू टाइप का मतलब क्या हो गया? जहां पर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों रिएक्टेंट सेम, और द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम. दो रिएक्टेंट टर्म्स होंगे यहाँ पर और दोनों की कंसंट्रेशन सेम. या फिर दूसरा कौन सा? जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट. तो पहले हम किसके लिए? फॉर सेम कंसंट्रेशन, where when the reactant concentration is same. So there are two molecules of A that is converting to the product. Again at T is equal to 0, initial concentration of A is A, product is 0. After time T, the product is X and it is A minus X. Now applying the rate law. So minus dA upon dt is equal to Ka to the Ka की पावर स्क्वायर, K into concentration of A to the power square. या इसको A into A भी लिख सकते हैं, तब भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना. तो टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज्ड टू, इट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट dx over dt is equal to K into A minus X square. अब A minus X को किसके साथ ले आएंगे? dx के साथ. इट विल बिकम dx over A minus X square is equal to K dt. Now integrate this equation with the limit x is equal to 0, t is equal to 0. ये क्या है? It is 1 upon A minus X, limits x is equal to x and 0, it's equal to K t.
अब इसको मैं डायरेक्ट ही लिख दिया, इंटीग्रेशन आप लोग कर ही लोगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हमने लिख दिया 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू एक्स ओवर a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt. So rate constant for the second order reaction when the concentration of the reactant is same, it will be equal to k is equal to 1/t x upon a into a minus x. ठीक है. So if it is the rate expression for the rate constant of the second order reaction where both the concentration of both the reactants are same. अब इसके लिए यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट के लिए? देखिए 1 टाइम इनवर्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, क्योंकि ए के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन और ए माइनस एक्स के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन, तो एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो कैंसिल हो गया, तो क्या होगी टाइम इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स. So the unit for the rate constant for the second order reaction will be concentration inverse and time inverse. So if the concentration is taken in terms of the moles per liter and time is taken in second, then it will become the liter per mole inverse and second inverse. Now half-life period. Half-life period again x की वैल्यू कितना हो जाएगी a/2 and t is equal to t half. Put this value in the rate equation for the second order reaction. तो t half क्या हो गया एक यहाँ पर ऊपर x की जगह आपने क्या रखा a/2, तो ये क्या हो जाएगा k is equal to a/2 upon t half into a minus a/2. So it is 1 upon t half a. So t half is equal to 1 upon ka. So what is the relation between half-life period and initial concentration of reactant for the second order? The half-life period of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of the reactant. ठीक है, half-life period क्या है? जो reactant की initial concentration उसके inversely proportional है, जबकि for the first order the half-life period is independent of the initial. कोई भी initial concentration वो half-life affect नहीं करती है, जबकि यहाँ पे क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे हाफ लाइफ क्या होगी कम हुई, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे हाफ लाइफ बढ़ जाएगी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ कम टू द ग्राफ. ठीक है, यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे किसमें आपका जैसे 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू kt है ना. ये ऊपर वाला इक्वेशन देखिए 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू kt. सो ग्राफ विल बी प्लॉटेड. अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द लीनियर इक्वेशन. तो 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस 1/a, ये हो जाएगा ना. ये जो इक्वेशन क्या हो जाएगी 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस 1/a. तो y इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स mx, m यहाँ पर क्या हुआ k, x is t value and c is 1/a slope. ठीक है, तो y is equal to mx plus c. So when a graph is plotted between inverse of the concentration of reactant with time, then it will be a straight line. ये कैसी होगी upward straight line with the slope and the value with the intercept. The value of slope is given by k. जो slope की value है वो किसको देगी rate constant की value को, और जो intercept है that will give you the value of the initial concentration. You can find out the value of initial concentration by the intercept and you can find out the value of rate constant for the with the help of this slope. So this is the rate equation for the second order reaction when the reactant concentration is same. Next the second order reaction for different concentration of reactant. अब ये आपको खुद निकालना है. निकालोगे? सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करके रखेंगे, अपने आप से करोगे है ना. मगिंग वाला कोई काम नहीं कि रट लिया और लिख लिया. तो सेकेंड ऑर्डर में जैसे यहाँ पे क्या है कि सेकेंड ऑर्डर के लिए दो डिफरेंट वेरिएबल टर्म्स a plus b is equal to product. If the concentration, initial concentration of A is small a or capital B is small b,
time is equal to 0 पे product concentration will be x 0, and after time t the product concentration x, a की concentration कितना बचेगी, a minus x और b की b minus x. अब जो रेट इक्वेशन सबसे पहले क्या है, यू शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द रेट इक्वेशन, हाउ टू इम्प्लीमेंट द रेट लॉ, हाउ टू राइट अ रेट इक्वेशन. तो रेट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, dx over dt. तो dx over dt is equal to k into a minus x into b minus x. अब इनको जो है लिमिट्स x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या करना है, आपको x के नीचे x टर्म्स ले आना है और k के साथ t को ले जाना. तो ये आप जो है वो आप इसको करके रखेंगे अपने कॉपी में, और हम किसी भी बच्चे को बोलेंगे तो कॉपी शुरू करेगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए जो है वो यू विल हैव टू फाइंड आउट दी रेट कांस्टेंट एंड यूनिट. यूनिट तो खैर सेम ही रहेगी, है ना. तो ये जो आपको निकालना है रेट कांस्टेंट. सो ओवर फॉर टुडे आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ ये सब हमने. हाँ बोलो बेटा. मैम रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उसके लिए मैम कोई जनरल फॉर्मूला है? हाँ जिससे जनरल हम हर फॉर्मूला ऑर्डर हम बताएंगे आपको, अभी इसी में दिया भी हुआ है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए. आप फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सब सारे वो निकाल भी सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक जनरल फॉर्मूला दिया है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसको निकाल के आप जो है वो सीधा रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, उसे रेट कांस्टेंट निकाल लो. ठीक है. यस मैम थैंक यू. और इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं. तो ये these are the examples of the I have given some example of the first order and second order reactions, so you can see. और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. सो ओवर फॉर टुडे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. आपने Thank you, ma'am. क्वेश्चन भेजा है एनीबॉडी वांट Thank you, टू ma'am. आस्क समथिंग. मैम, जो आपने मैम बुक का पोर्शन भेजा है वो मैम वो भी लिखना है मैम नोट्स में.